नीम करौली बाबा, जिन्होंने देश विदेश के कई लीडर्स का मार्गदर्शन किया है। इस लिस्ट में शामिल है एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स, गूगल के फाउंडर लैरी पेज, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, अमेरिकन स्पिरिचुअल लीडर रामदास, इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली और लाखों अन्य लोग। आइए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं और फिर जानेंगे ये कौन है और क्यों इतने प्रसिद्ध है, और छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से इसका प्रमाण भी देखेंगे। रामदास, जिन्हें पहले रिचर्ड एल्पर्ट के नाम से जाना जाता था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने और उनके हार्वर्ड के दोस्त टिमोथी लैरी ने एलएसडी की खोज की थी और छात्रों के साथ इसका प्रयोग करने की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए थे। एलएसडी का प्रभाव समझने के लिए एल्बर्ट भारत में एक डिब्बा भर एलएसडी की गोलियां लेकर आए और हिमालय में साधुओं और योगियों से मिले। सबसे आखिरी में वे महाराज-जी, जिन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाता है, से मिले। जब एल्बर्ट ने पहली बार महाराज-जी को देखा तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को शॉल में लिपटे हुए चट्टान पर बैठे देखा और उनके चारों ओर 5-6 अन्य भारतीय लोग थे। उन्हें महाराज-जी को देख के लगा कि इस आदमी में कुछ खास बात नहीं है, लेकिन एल्बर्ट की ये सोच जल्दी बदलने वाली थी। शाम को जब एल्बर्ट महाराज-जी के साथ बैठे तो उन्होंने एल्बर्ट से पूछा, इस डिब्बे में तुम क्या लाए हो? एल्बर्ट ने एलएसडी की गोलियां बाबा जी को दी। बाबा सारी गोलियां निकल गए और बहुत नॉर्मली अपना काम करने लगे। एक आम इंसान शायद इतनी एलएसडी लेके पागल हो जाता या मर जाता, पर बाबा हिले तक नहीं और एल्बर्ट के साथ पूरा दिन बैठे रहे। आइए एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से इसका प्रमाण देखते हैं। Right after I met him, he said to me, "You got any of that yogi medicine?" I said, "What yogi medicine?" I thought he meant vitamins. I said, "I've got some, but they won't help a man like you, you know." He said, "Yogi medicine, yogi." Somebody said, "I think he means the acid." I said, "You mean acid?" He said, "Yeah." So I brought acid, and I had pills that were 300 micrograms each. So he held out his hand, so I gave him one, which is a good dose. And he kept, come on. So I gave him a second dose. Come on. He gave him a third. Now, 900 micrograms for a new person. I mean, he was over heavyweight, but that's still a good size, and it was really good acid. So he goes like this, see? And he throws it into his mouth, and I just think this is going to be pretty interesting, you know, and nothing happens at all. Nothing. So I go back to the States, and I tell everybody, this guy took 900 micrograms and nothing happened. Because, I mean, this is our medicine. I'm impressed, you know. But I mean, in the back of my mind is the gnawing question, do you suppose he really swallowed it? Maybe he veiled my mind and threw it over his shoulder or something like that, you know. But I don't know. So I come back to India 2 years later, and I find him after about 6 months, and he says to me, first time I come up to him, he says, "Did you give me some medicine last time you were in India?" I said, "Yeah." He said, "Did I take it?" I said, "I think so." He said, "What happened?" I said, "Nothing." "You got any more of that medicine?" So I said, "Yeah." So I brought out, and I had 5 pills, 300 each. And one of them was broken. He wouldn't take the broken one. He took the 4 others. And he took each one, and he stuck it on his tongue. And he made absolutely sure that I saw that he took it all in. Then he said, "Can I have water?" And I said, "Yeah." "Pani, garam to hot or cold?" I said, "Doesn't matter." So he called for water, and he drank some water. He said, "Will it make me puggle or will it make me crazy?" I said, "Probably." And at one point, he went under his blanket, and then he came back down looking absolutely mad, and I thought, what have I done to this poor old man? He doesn't understand the power of our medicine, and he probably did throw it over his shoulder last time, and I've trapped him into taking it. Oh my God, how can I live with this? And all this. And then when he had me totally paranoid, he laughed in glee. And nothing happened. And then he said, "These were known about thousands of years ago." He said in the Indus Valley, in the Kula Valley, he said. But he said most of that's been forgotten. Now, yogis don't do the preparations for this kind of experience anymore. They did fasting and they did things before this. महाराज जी के बारे में सबसे अनोखी बात ये थी कि उन्होंने वो नहीं किया जो सामान्यतः गुरु करते हैं। उन्होंने कभी व्याख्यान नहीं दिए, किताबें नहीं लिखी, लोगों को दीक्षा नहीं दी। वे बस लोगों को कुछ समय अपने पास रहने देते थे और फिर विदा कर देते थे।
अब जा रही माई, जाओ, अब जाओ, फिर आना, अब जाओ। और ये पर्याप्त था कि उनके शिष्य पूरी तरह प्रेरित हो जाते थे। कुछ समय बाद रिचर्ड एल्बर्ट रामदास के नाम से जाने गए। उनकी कई वीडियोस, बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज में इसका वर्णन है। रामदास द्वारा लिखी गई एक किताब बी हियर नाउ पढ़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने इंडिया आने का सोचा। स्टीव जॉब्स 60 के दशक में अमेरिका के पश्चिमी तट पर पले बड़े थे। उन दिनों स्टीव जॉब्स कॉलेज छोड़ चुके थे और पोर्टलैंड के हरे कृष्ण मंदिर में मुफ्त भोजन खाते थे और अपनी भारत यात्रा के लिए पैसे बचा रहे थे। एक 18 वर्षीय बैकपैकर के रूप में आत्मज्ञान की खोज में जॉब्स 1974 में अपने दोस्त डैन के साथ भारत के लिए रवाना हुए। जब जॉब्स नैनीताल के पास कैची में नीम करौली बाबा के आश्रम पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि बाबा 1 साल पहले अपना शरीर छोड़ चुके हैं और भारत वैसा नहीं था जैसा उन्होंने कल्पना की थी। उन्होंने कुछ समय धाम में व्यतीत किया और फिर वापस चले गए। हाल ही में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कैची धाम के दौरे के बारे में बताया। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी इस वीडियो में भी किया है। Before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. बाबा जी एक पहेली थे। उन्होंने कोई उपदेश नहीं छोड़े, कोई सार्वजनिक विरासत नहीं, फिर भी दुनिया भर के भक्त उनसे गहरे संबंध बना रहे थे। लैरी ब्रिलियंट, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स को खत्म किया था, जिससे भारत के कुछ शहरों में छोटी माता के नाम से जाना जाता है। ये वो बीमारी है जिसने 20th सेंचुरी में लगभग 500 मिलियन लोगों की जान ली थी। लैरी ब्रिलियंट अपनी कहानी में नीम करौली बाबा का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास जब कोई नौकरी नहीं थी, तब जेब में $500 लेके वो भारत में मेडिटेशन करने आए और नीम करौली बाबा से मिले। आइए उनकी एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। Kenshi Ashram, which is near Nainital, which is also very close to Pachuri's birthplace. And my guru said to me, out of the blue, we were doing meditation and we were reading the Bhagavad Gita and we were chanting. And one day he said to me, how much money do you have, Dr. America? That's what he called me. He didn't call me brilliant. He called me Dr. America. And I said, well, I have $500. He said, Jut Mut Bolo. He said, how much money do you have, not just here, but in America? And I said, well, I have $500 there too. And he said, $500, this is all in Pahari, in Hindi. He said, $500 here, $500 there. You're not much of a doctor. You are no doctor, which is what my mother used to say to me, because if you don't have a lot of money, you're not a real doctor. And then he started saying in Hindi, you are no doctor, tum to doctor nahin. And then he started saying in English, you are no doctor, you are no doctor. And then he said, UNO doctor, UNO doctor ho jayega. You will go to villages, you will become a United Nations doctor, and you will help to eradicate smallpox, because smallpox, this terrible, is Khatra Mahamari Khatam ho jayega. This is God's gift to humanity, that this one kind of suffering will be lifted from the shoulders of humanity because of the hard work of dedicated health workers. We just sat there, and then he said, Tum jao, jao. And I said, where? He said, go to Delhi, go to WHO, and you'll get your job, which was easy enough for him to say. But I really had long hair down to the middle of my back, and I was wearing a long kurta and pajamas, and I walked into the WHO office, and I said, hey guys, my guru who lives in the Himalayas said I'm supposed to come work for you, and that smallpox is going to be eradicated. This is God's gift to humanity. That's fine, go back to your ashram. And I did that 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 times, back and forth between Nainital and Delhi. And then the woman who was running the smallpox program for WHO, Nicole Grasset, she said, can you type? And you speak Hindi? Can you work as a secretary? Because we don't have any jobs for doctors. And she had to create a position low enough where they could hire me and that it didn't have to go through all the official clearances. And I said, sure, my guru didn't say I was supposed to work
get any kind of high-level position. Yeah. So that's how I started working at WHO. नीम करोली बाबा की शिक्षाएं सरल परंतु गहरी थी। वे कहते थे सभी से प्रेम करो और सभी की सेवा करो। मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल नहीं हूँ, पर कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज आपके साथ नहीं होती तब तक आप विश्वास नहीं करते। मैं कैची धाम के मंदिर के पास से गुजर रही थी। भीड़ इतनी थी कि सड़क तक लोग लाइन में खड़े थे। ट्रैफिक भी लगा हुआ था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि जरूर कुछ चमत्कारी हो रहा है, तभी तो इतने सारे लोग बाबा के दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं। उसने कहा तुझे पता नहीं है, कुछ दिन पहले यहाँ विराट कोहली आए थे और यहाँ दर्शन के बाद उन्होंने अपने पहले मैच में 3 साल बाद सेंचुरी मारी है। और बोला रुक, मैं तुझे यहीं से दर्शन करवा देता हूँ। उसने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई और बोला देख। मैंने सड़क से ही मुस्कुराती हुई बाबा की मूर्ति को देखा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सड़क से बाबा जी की मूर्ति साफ दिखाई देती है। उस पल मेरी लाइफ की एक प्रॉब्लम जो कई साल से चल रही थी वो मेरे दिमाग में आई। मैंने हाथ जोड़े और हम आगे बढ़ गए। अगले दिन खुद ही मेरे पास उस प्रॉब्लम का सलूशन था। शायद ये सब घटनाओं का संयोग था, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। अगर नीम करोली बाबा की कहानियां बताना शुरू करूं तो शायद कई घंटे लग जाएंगे। आइए नीम करोली बाबा के बारे में जानते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म करीब 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि वही 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने घर छोड़ अपना जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार आए। उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। आश्रम की स्थापना 1964 में की गई। वे एक कंबल ओढ़े रहते थे और बहुत सादा जीवन जीते थे और लोगों को अच्छे काम करने और सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। आज दुनिया भर से लोग बाबा के आश्रम में आते हैं। कुछ लोग पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं और कुछ क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आ चुके हैं इसलिए। 60-70 के दशक में हो सकता है यहाँ बहुत शांति रही होगी और जो जवाब शहरों की भीड़ में नहीं मिलते वो प्रकृति में शांत बैठ मेडिटेशन कर खुद ही मिल जाते हैं। अगर आप नीम करोली बाबा के भक्त हैं तो आप जरूर इस धाम में आए, पर अगर आप शांति की खोज में या मेडिटेशन करने आ रहे हैं तो अब ये जगह वो नहीं रही जो कई साल पहले थी। महाराज जी कहा करते थे कि असली पूजा, असली दर्शन लोगों की मदद करने में है। अगर आप किसी गरीब या असहाय की मदद करेंगे तो बाबा खुद ही आपको दर्शन दे देंगे। अगर आप कैची धाम आ चुके हैं या कैची धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।